नमस्कार दोस्तों, मिशन AIBE में आपका स्वागत है। आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ होगा कि AIBE पास नहीं हुआ मेरा। ऐसी मैंने कौन सी गलती की होगी कि मेरा जो AIB का एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने ये चीज़ तो पता कर ही ली होगी, वीडियोस को देख के, अलग अलग वीडियोस को देखी होगी आपने कि 51% के आसपास जो बच्चे हैं वो पेपर क्लियर नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को जब सोचा गया ना, मैंने अपने कुछ कुलीग्स या फिर अपने सीनियर्स के साथ जब बात की कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि इतने बच्चे फेल हो गए होंगे, क्या हमारी कोई खुद की कोई गलती नहीं रही होगी। तो जब बहुत सारे लोगों से जब डिस्कशन हुई है तो एक चीज़ निकल के सामने आई। वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि एक्चुअल में क्या एक स्पेसिफिक रीज़न रह सकता है। देखो, जो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस भी एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से ये पेपर क्लियर नहीं हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। Overconfidence can significantly impact performance on exams like All India Bar Examination. Here, how it might have contributed to your failure and what you can do to address it. Now, let's understand it. Understanding the exam. See, overconfidence can lead to underestimating the difficulty and comprehensive of the exam. What exactly happens when we are overconfident? Then we actually feel that this exam may not be very difficult. We almost underestimate the importance of the exam. So, what the solution of this problem is? Treat every exam with the seriousness it deserves, review the syllabus thoroughly, and understand the scope and depth of the topics covered. Unless unless you will stop underestimating the difficulty and comprehensiveness of the exam, and seriously you will start studying. Unless you will do that, you will not review the syllabus thoroughly, this is really difficult to clear any of the exam. I'm not talking about the AIB exam only, but I'm giving you the hint that every exam is equally tough unless you are overconfident. If you are overconfident and you are not able to understand the seriousness of this exam, so you will not be able to clear it. Believing you know inadequate preparation, believing you know the material well might result in less time spent studying and preparing. Follow a structured study plan covering all topics comprehensively, even those you think you know very well. See what exactly we do now. AIB 19 is about to come, isn't AIB 19? AIBE 19 is about to come, isn't? So, what will happen? We are still not aware of when this exam will be conducted. So, still we have ample of time to prepare ourselves for this exam. But if we are not giving attention for AIBE 19 still, then we will not be able to clear this exam again. Understood? So, inadequate preparation, believing you know the material well, might result in less time spent studying and preparing. So obviously, if you find that you believe that I can do everything, so you will spend less time to your studies and you will spend less time for preparing your syllabus, and obviously this will again going to create a mess for you. Skipping practice tests. Overconfident students might skip practice tests thinking they are unnecessary. Take as many practice tests as possible to familiarize yourself with the exam format and identify areas that need improvement. Obviously, this is about to happen. The overconfident student will certainly think, hey, this is only the wastage of time. I need not to pay more attention for these exams.
This is this is the wastage of time. So but the only solution is that instead of thinking that this is the wastage of time, you should prepare yourself for giving as much exam as you can take for the practice of any of the exam. Ignoring weak areas. Overconfidence can lead to ignoring or glossing over weaker subjects of areas of studies. ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं उन एरियाज़ को जो हमें लगता है अरे ये नहीं आने वाले हैं. अब जैसे मैं बोलूँ कि 10 नंबर का पेपर आईपीसी सॉरी एविडेंस में से आने वाला है, या इंडियन पैनल कोड में से आने वाला है, या सीआरपी में से आने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बाकी जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनमें से आने हैं, या 4 नंबर वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने के बारे में नहीं सोचूंगी. और यहीं पर मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये तो कोई श्योर नहीं है कि अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में से 5 नंबर या 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 मुझे आते ही होंगे. ऐसा तो कुछ नहीं है. तो वीक एरियाज़ को हम जनरली इग्नोर करते हैं. बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. एलोकेट extra study time to areas where you are less confident. Careless mistakes. Overconfident students may rush thorough questions, leading to careless mistakes. Practice time management and double check your answers. Take the time to read each question carefully. ऑब्वियसली ऐसे ही होता है. ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, अरे जल्दी जल्दी टिक मारो, अरे जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, अरे मुझे आता है, ओ मैंने सुना हुआ था, अरे मुझे आता है, मुझे आता है. नहीं भाई, डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है. डबल चेक करो प्रॉब्लम को, जो हमने काम कर लिया है क्या वो सही किया है कि नहीं किया है. ज़रूरी नहीं है साथ के साथ OMR शीट में भरते रहना, उसको टिक करते जाओ जो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. जब OMR शीट में भरने लगोगे एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो, कि उसके बाद फिर चेक कर लो कि मैंने जो आंसर B या C या D या A या कुछ भी भरा हुआ है कुछ सही भरा हुआ है ना. एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख दो जल्दी से, और उसके बाद OMR शीट में भर दो अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई मेरे से हो जाएगा. लैक ऑफ अटेंशन टू एग्जाम स्ट्रेटजीज. ओवर कॉन्फिडेंस माइट मेक योर निगलेक्ट इफेक्टिव एग्जाम स्ट्रेटजीज सच एज टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन प्रियोरिटाइजेशन. हम क्या करते हैं, हमें लगता है अरे कोई स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, 3 आवर्स का टाइम है हमारे पास, 3 घंटे में हमें एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, हम आराम से कर लेंगे, कोई क्वेश्चन की प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की, बहुत ईजिली हो जाएगा. पर एक काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और उसको 3 घंटे के अंदर सॉल्व करके देखो. आई एम डेड श्योर कि अगर एक बार करने जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो और प्रैक्टिस नहीं की हुई है पहले आपने, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन ही बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं 3 घंटे के अंदर. सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजिली नहीं हो पा रहे हैं. देखो हर तरह का स्टूडेंट अवेलेबल है. मैं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ भाई. अब आप 99% वाले स्टूडेंट हैं और आप कहें कि भाई ये चीज़ें मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं. पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह की दिक्कतों का सामना, साइकोलॉजी क्या रहती है ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की, साइकोलॉजिकली वो कैसे सोचते हैं उन चीज़ों को. ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़िए. नॉट सीकिंग हेल्प. फीलिंग overly confident might prevent you from seeking help or clarification on confusing topics. ऐसा ही होता है. You feel like अरे this is really not a very difficult question, I will either search on the internet or I do not need to ask somebody else. किसी और को क्या पता होगा, जब मुझे नहीं आ रहा तो किसी और को भी नहीं आता होगा. इस जनरली ऐसी सोच हो सकती है, तो हम लोग उस चीज़ को या तो छोड़ना प्रेफर करते हैं, अरे मुझे नहीं आ रहा तो उसको भी नहीं आता होगा, छोड़ यार आगे पढ़ते हैं. तो हम किसी के हेल्प लेना भी पसंद नहीं करते, तो ये भी गलत है. डू नॉट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, peers or mentors. Use available resources to clarify your doubts. Misjudging the importance of details. Overconfident students might overlook important details thinking they are unnecessary. मैंने अभी जैसे आपको बताया, साइकोलॉजिकली अगर थोड़ा सा बात करते हैं वो उनको लगता है अरे ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लग रही है, इसको छोड़ो.
आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और किसी से हेल्प लेना भी पसंद नहीं करते, कोई रिसोर्सेज को अवेल करना पसंद नहीं करते, कोई टीचर्स की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, कोई अपने कोलीग्स की हेल्प लेना पसंद नहीं करते हैं, किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। एंड साइमल्टेनियसली उन लोगों के लिए वो डाउट एज इट इज स्टैंड बाय रहता ही रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, पे अटेंशन टू ऑल details no matter how trivially they seem. Thoroughly preparation includes understanding the finer points of the material, recognizing the impact of overconfidence and making necessary adjustments in your preparation approach can help improve your performance in future exams. तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, जो हमने ये 7-8 पॉइंट्स अभी हमने स्टडी किए हैं या समझे हैं, तो देखो इट जर्नली हैपन्स, ठीक है ना। तो आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को उठाना है और एक एक बार उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी बता रही हूँ, उन चीज़ों को भी ध्यान से समझिए कि फेलिंग एन एग्ज़ाम कैन बी ए टफ एक्सपीरियंस, आई डू एग्री विद दैट, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। देखो भाई, ऐसा भी हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब उन्होंने बेयर एक्ट उठा भी लिए होंगे। अब उन्होंने कहा चल भाई अब पूरी सीबीसी पढ़ लेते हैं, सीआरबीसी को पूरा पढ़ लेते हैं, आईपीसी को देख लेते हैं ऐसे क्या है इसके अंदर, और एविडेंस को भी देख लेते हैं ऐसे क्या चीज़ है जो मेरे से नहीं हुआ। ये भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों में आया होगा कि इस बार तो पूरा बेयर एक्ट पढ़ लेना मैंने, ठीक है ना। तो मैं मानती हूँ कि किसी एग्ज़ाम, कोई एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब नहीं करता है, इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब नहीं करता है, पर फिर भी एक एग्ज़ाम में फेल होना सिर्फ ये एक करियर को रूइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है आपको ये भी सोचना है कि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। Here are some common mistakes that might have contributed to the failure along with suggestions and improvements. Listen. Lack of understanding the material, मैंने जैसे अभी ऊपर not fully grasping the concepts being tested. Review the material thoroughly, seek help from teachers or peers, and use additional resources like test books, online tutorials or study groups. अभी हमने लोग ऊपर बात की है, poor study habits is one of the major mistake generally students do actually. Inefficient or inconsistent study routines, एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, बीच में 1 हफ्ते का गैप डाल दिया। देखो जो ये इनसफिशिएंट इनकन्सिस्टेंट स्टडी रूटीन जो है ना, ऑब्वियसली ये किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पैक्ट कर ही देती है जर्नली। तो इसके लिए डेवलप अ स्टडी शेड्यूल, यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल समराइजिंग, टीचिंग अदर्स, एंड ब्रेक स्टडी सेशंस इनटू मैनेजेबल चंक्स, ठीक है जी। डिलेइंग स्टडी सेशंस अनटिल द लास्ट मिनट, अब क्या होता है कि भाई ठीक है अभी कहाँ पेपर आया, अभी कोई रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं है, कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है, हमने बीसीए की साइट को चेक कर लिया 2 बार 4 बार 6 बार, कुछ नहीं आया भैया, आराम से बैठते हैं, कोई बात नहीं, अभी एम्पल ऑफ टाइम है, 10 दिन 10 महीने का बीच में समय, 6 महीने का समय है, अभी क्या ज़रूरत है इतना पंगा लेने की। बट वो 6 महीने कब 6 दिन और 6 घंटे रह जाते हैं ना, वो पता नहीं लगता। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है, स्टार्ट स्टडिंग वेल इन एडवांस, सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशंस, and use tools like planners or apps to stay organized. Ineffective study methods, using passive or ineffective study techniques, employ active learning strategies such as practice tests, flashcards, and problem solving exercises. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं, उन सबको उठाओ और एक बार उन्हें सॉल्व करके देखो। जितनी जल्दी 3 घंटे का टाइम अपना सामने रखो और बोलो कि भाई इस 3 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, एक बार करके देखो एक बार में कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, 30 40 50 जितने भी निकलते हैं, फिर उनके सबके आंसर्स को एक बार अच्छे से स्टडी करो, मुझसे कौन से ऐसे क्वेश्चंस नहीं हुए, वो कहाँ पे हैं बेयर एक्ट में, कौन सी जगह पे गिवन है, फिर उसके बाद दोबारा उसको एक बार रिव्यू करके देखो, फिर देखो 3 घंटे में पहले जहाँ 40 क्वेश्चन हो रहे थे अब आप 90 में पहुँच चुके होगे,
ठीक है जी। Lack of practice, not practicing enough specifically for subjects requiring problem solving skills. So complete as many as practice problems or past exam papers as possible to build confidence and identify weak areas. Poor time management during the exam, spending too much time on one question and not managing time well. Practice time exams to improve pacing and develop strategies for quick moving past difficult questions to return to them later. ऐसे ही हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को ढूंढते रहोगे, ये आईपीसी का है, ये एविडेंस का है कि सीआरपीसी का है, हमें तो यही नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन आया कहाँ से है। इसको देने चाहिए थे 1 मिनट, दे दिए 4 मिनट, उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने करा कि नहीं करा, हो गए 6 मिनट, तो उसके बाद अब करें कि नहीं, चल भाई सर्कल कर देते। गलत है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अगर समझ में आ जाता है इंस्टेंट कि कहाँ कौन से बेयर एक्ट में से कहाँ पे होगा, तो इंस्टेंट उसके वहाँ पे स्विच करो, अगर नहीं आता फॉर द टाइमिंग उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है जी। Not seeking help they needed, struggling alone without seeking assistance, ask for help from teachers, join study groups or hire a tutor if needed. Exam anxiety, letting stress and anxiety affect performance. Practice relaxation techniques such as deep breathing and meditation and build confidence through adequate preparation. ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे एंक्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो भैया ये सब कुछ तो नहीं करना आपको। मेडिटेशन करते रहिए, साथ के साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी साइमल्टेनियसली अपने आप को यूज़ टू करते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। Interpreting exam questions, carefully read each question, underline key terms and ensure you understand what is being asked before answering. समझ में तो आ गया होगा भैया। बहुत सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम इस वजह से भी कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम में आए, क्योंकि उन्होंने बीच में ये देखा ही नहीं कि नॉट लिखा हुआ है बीच में, नॉट का भी पूछा हुआ है। बस उन्होंने जल्दी जल्दी बेरेक खोला, देखा अच्छा ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, चलो भाई आंसर दो। Neglecting health, ignoring physical and mental health, leading to fatigue and poor focus. Maintain a healthy lifestyle including proper sleep, nutrition and exercise, and take breaks to avoid burnouts. भैया ठीक टाइम पे खाना खाओ, ठीक टाइम पे सो जाओ, ठीक टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, ठीक टाइम पे उठ जाओ। तो देखो वही कहते हैं ना कि रोज़ एक ही तरह की चीज़ को करने से भी, अगर हम बेस्ट आपके मम्मा अगर आपको रोज़ सोचे ना, रोज़ बेटा लो पनीर खिला देती हूँ रोज़ ही, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसके अंदर, बट वो भी आपको कभी ना कभी नुकसान कर देगा। तो हर चीज़ का एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है, लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ ख़राब ही करेगी। तो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ जो है, खाना पीना है, सोना है, जागना है, पढ़ना है, तो हर चीज़ को इक्वली इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी है। मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन and exercise, and take breaks to avoid burnouts. Reflecting on these areas and making necessary adjustment can significantly improve your chances of success in future exam. ठीक है जी। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं श्योर हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर दोगे, जिसकी वजह से आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम होगा वो आप निकालने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। ये मेरी पर्सनल परसेप्शन थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जर्नली बच्चों के किस वजह से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, चाहे वो एआईबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो कुछ किस तरह की जर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान एक बार और देख लीजिएगा कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ या करती हूँ, ताकि उन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकें और अपने एग्ज़ाम को इस बार क्लियर कर सकें। क्योंकि कई बार डू एंड डाई सिचुएशन होता है कि भैया करना ही करना है इस बार, तो
पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, या अपना पर्सनल भी प्रेशर होता है कि ठीक है भैया हमारी खुद की भी इज़्ज़त है, सेल्फ अपनी भी एक इमेज है, हमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी में स्टैंड बाय करना है, तो मुझे भी एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है। तो अपना खुद का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं अगर किसी भी कैटेगरी में आप महसूस करते हैं कि मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, तो काइंडली उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशंस आपको दिए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर होना ही चाहिए। तो और 100% होगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस, फॉर हैविंग ए पेशेंस। थैंक यू, टेक केयर।